topic of Newton's ring. Okay, so ब्लैक बोर्ड विजिबल है बच्चे? क्योंकि रूम में लाइट ऑन नहीं है, लाइट ऑन करना पड़ेगा। Yes, बच्चे? हाँ, so we are discussing the topic of interference, and under this interference we'll discuss the interference by division of amplitude. Okay, by division of amplitude we are discussing this topic, and under this topic we discussed initially what do you mean by parallel thin film, that is a constant thickness thin film. Then we discuss the topic of wedge shaped film, that is an air film of variable thickness, या फिर any other film of variable thickness. We discussed what is the expression for part difference and how you can get the fringe width in that case. Now we'll discuss the topic of your Newton's ring. Okay, so Newton's ring क्या है? What are Newton's rings? Newton's rings are also based on the same is, that is, it is also based on the concept of interference by division of amplitude, that is, intensity of the incident light or amplitude of the incident light is divided into two parts, either by reflection or diffraction, and those two parts traverse different paths and reunite to produce interference pattern. And यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे this is also hello, yes, anyone having any doubt? कोई confusion? Okay, so in this case, what is the thin film? Thin film is enclosed between the two glass surfaces. So यहाँ पे two glass surfaces क्या है? One is your plain glass plate, ये नीचे जो है this is a plain glass plate, and इसके ऊपर हमने place किया है एक plano convex lens. Okay, and both are circular. ये तो 2D व्यू है, 3D व्यू में अगर इसको देखेंगे both are circular. ये सर्कुलर मतलब क्या है? ये एक प्लेन ग्लास प्लेट, राउंड सा ग्लास प्लेट हम प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हम एक प्लानो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट डू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? पता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बोलो, व्हाट डू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्या होता है बच्चे? कैन एनीवन टेल मी? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अरे बच्चे बोलो, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? दिस लेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एंड उस स्फीयर का रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, मैथमेटिकल बहुत आएगा ये. ओके, सो दिस इज योर प्लानो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब क्या है? When you are considering the plano convex lens is having large radius of curvature, मतलब the height of the curved surface is very very small. ये जो curved surface का जो height होता है that is very very small. Okay, so hardly you can distinguish between which one is a plain glass plate and which one is a plano convex lens. And when such type of glass plate and plano convex lens is placed on the glass plate combination we are taking, then some air will be enclosed between the two surfaces. Okay, and that thickness of the air is very small, that is in the range of this micrometer range. Also we can get a air film enclosed between the plano convex lens and glass plate, and the air film is having variable thickness. And देखो, suppose this is a plano convex lens, this is the contact point, यहाँ पे thickness कितना होगा? यहाँ पे thickness आपका 0, and यहाँ पे thickness कितना होगा? Suppose we are considering this distance is your A and यहाँ पे this distance is your B. It is constant distance. सेंटर से ये साइड में डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज योर, एट दिस पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट ए नाम दे दिया, एंड ओ ए वी आर कंसिडरिंग एज स्मॉल ए. सपोज यहाँ पे पॉइंट दे दिया बी, दैट इज कंसिडरिंग एज
वो भी कंसिडर एज स्मॉल है। सो ये क्या है, दैट इज एट दिस पॉइंट थिकनेस जितना है, एट दिस पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द एयर फिल्म विल हैव कांस्टेंट थिकनेस, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस, सपोज यहाँ पे आपका थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ द फिल्म इज T1 here and thickness of the film is T2 here, thickness of the film is Tn here, then at the same distance from the center यहाँ पे thickness हो जाएगी Tn, यहाँ पे thickness हो जाएगी T1, फिर T2, फिर Tn, ऐसे constant thickness we can consider, ठीक है। That is the thickness of the air film that will be enclosed between the glass plate and plano-convex lens will have a constant thickness at a particular distance from the center, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट O, कॉन्टैक्ट पॉइंट O को हम कब बोलेंगे, दैट इज द सेंटर। इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट O से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एयर फिल्म इज हैविंग द यूनिफॉर्म थिकनेस, ओके। एंड वी आर गेटिंग फ्रिंजेस बिकॉज ऑफ द थिकनेस, वेरिएबल थिकनेस। वेरिएबल थिकनेस यहाँ पे पार्ट डिफरेंस वही आएगी 2 mu t cos ऑफ प्लस और माइनस लैम्डा बाई 2, उसी के फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी, लेट अस सी दैट थिंग। अभी देखो व्हाट इज दिस थिंग, नाउ दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। अभी यू कैन सी दिस फिगर नाउ, इन दिस फिगर यू कैन ऑब्जर्व व्हिच वन इज इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो ये लाइट जो इंसिडेंट हुआ, जो कोई भी सोर्स से सपोज यू आर गेटिंग लाइट, द लाइट इज इंसिडेंट हियर एट दिस पॉइंट। सबसे पहले ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर से गया, ऊपर से जाके ये it is propagating inside the plano convex lens and it is touching the air film at this point. हाँ बच्चे, माउस मूवमेंट दिख रहे हैं सबको? Are you able to see the mouse movement? हाँ Yes ma'am. हाँ देखो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द एयर फिल्म, ठीक है। क्योंकि थिन फिल्म में एक चीज आपको याद रखना है, वी आर कंसिडरिंग दिस इज द रिफ्लेक्शन सिस्टम, इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, एक थिन फिल्म के ऊपर से और एक थिन फिल्म के नीचे से। और ये जो ऊपर से लाइट टच किया कहाँ पे गया, वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दैट। ये लाइट भी यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन हुआ नहीं। एट दिस पॉइंट जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ है उसी का एक पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। लाइट इज टचिंग एट दिस पॉइंट, so this is the top surface of the thin film, ठीक है। so light ग्लास से आके एयर फिल्म को यहाँ पे इस पॉइंट पे टच किया है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आया, जहां से बाहर से आ रहे थे, यहाँ पे ग्लास मीडियम से आके एयर फिल्म को टच किया एट दिस पॉइंट। देन क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन मीडियम, so one part is being reflected and this reflected part कहाँ पे गया, reflected part यहाँ पे नीचे की तरफ गया। नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाते जाते कहाँ पे जाएगा, इट विल, द रिफ्लेक्टेड पार्ट विल प्रोपागेट इनसाइड द, सॉरी, रिफ्लेक्टेड पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया एंड ये जो पार्ट है दैट इज द रिफ्रैक्टेड पार्ट और ट्रांसमिटेड पार्ट, ये क्या करेगा, दिस विल प्रोपागेट इनसाइड द फिल्म, ये फिल्म के अंदर गया ट्रांसमिटेड पार्ट। देन अगेन इसका जो एयर फिल्म का जो बॉटम सरफेस से क्या हुआ, बॉटम सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, वन पार्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड अदर पार्ट जो ट्रांसमिट हो गया उसका हमें कोई कंसर्न नहीं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड पार्ट गया एट दिस पॉइंट टच किया, फिर से क्या हुआ, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होके दिस इज कमिंग बैक टू द मीडियम, जहां से लाइट जा रही थी वहां पे आ गया। इन दिस केस वी आर गेटिंग 2 रिफ्लेक्टेड रेज, ओके। फिर से इसको मैं बताती हूँ। So this is the incident ray. Incident ray is coming from any source and that is touching the air film at this point. And air film में जहाँ पे touch किया वहाँ पे it is being divided into 2 parts. One part जो reflect हो गया तो वो ऊपर की तरफ चला गया and जो remaining part जो transmit होके अंदर चला गया वो क्या किया। So first reflection कहाँ पे हुआ, air film के ऊपर से गया and बाहर की तरफ आया। Second reflection बाहर कहाँ पे हुआ, remaining transmit part चला गया अंदर, इनसाइड द फिल्म ये चला गया एंड देन यहाँ पे इसको एयर फिल्म के बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ पे भी मल्टीपल एट दिस पॉइंट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों हो रहा है। सो हम जो पार्ट इधर आ गया नीचे से रिफ्लेक्ट होके जो बाहर आ गया उसको हम कंसिडर करेंगे एज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। एंड when they are allowed to interfere, then it is possible to see the interference pattern, ठीक है।
बोलो, मैं इसको ब्लैक बोर्ड में समझा सकती हूँ पर इट इज नॉट क्लियर, सब फिगर से समझो वरना मैं फिर से बता दूंगी। बोलो क्या हो रहा है, इसका टेक्निक पहले समझ में आया? न्यूटन रिंग में इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, फिर हम आया बेटा, सबको आया? हाँ ओके, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादातर इसी का ही क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से एक ही बार समझ लो, ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, खाली समझना है इनिशियली। हो गया? अभी देखो मैम, ये जो सेकंड रे थी मतलब, तो मैम वो ग्लास स्लैब से भी उसमें इंटरफेरेंस हुआ है और उसमें इससे भी हुआ है कन्वेक्स लेंस से। देखो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, जो लाइट एयर फिल्म के ऊपर से, एयर फिल्म के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आया, एयर फिल्म के बॉटम से रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आया, देन विल कंसीडर ओनली दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये देखो आप जो बोलोगे ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये जो ग्लास मीडियम है, यहाँ पे पहले यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, पर हमारी जो कंडीशन है ना यहाँ पे, जो 2 म्यू टी कॉस आर का जो कंडीशन हमारी यहाँ पे होता है, ये कंडीशन उतना ही थिकनेस पे ही सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे भी क्या, जब इतने सारे सरफेस है, एवरी सरफेस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा, लाइट आ रही है मतलब हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, पर ये जो पैटर्न बनता है दैट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द थिन फिल्म, तो थिन फिल्म का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है मतलब व्हाटएवर रेज यू आर गेटिंग एट दिस आउटसाइड सरफेस में जो भी आ रहा है, दैट इज द light coming from the top surface of the air film and from the bottom surface of the air film, okay, top surface में रिफ्लेक्ट होके आया, बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होके एक पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ पे जो आया, इसका एक पार्ट यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन बाहर चला गया, यहाँ पे जो आ रहा है एक्चुअल यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, पर हम कंसिडर क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस फ्रॉम द बॉटम सरफेस, इसको ऐसे ही स्टाइल में लिखा जाता है, इसको ऐसे स्टाइल में समझोगे आप, ठीक है। एयर फिल्म की टॉप पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर जो बाहर आ गया, दैट इज योर टू रिफ्लेक्टेड रे जिसका इंटरफेरेंस वी आर कंसीडर, ठीक है, समझे? अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट ग्लास से डिफरेंट सरफेस से हो रहा है, वो ऐसे एज ए लॉस चला जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस टू थिंग्स, वरना हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है विद द कंडीशन ऑफ पार्ट डिफरेंस, एंड पार्ट डिफरेंस कब होगा, जब हमारी 2 म्यू टी कॉस आर उतना थिकनेस का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ओके। चलिए अभी आगे, वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, Newton's rings are formed when a planar convex lens of large radius of curvature is placed on a glass plate. This combination encloses a thin film of air of variable thickness between the two surfaces. Interference occurs between the light reflected from the lower surface of the lens and from the upper surface of the glass plate. Since the convex side of the lens is a spherical surface, the thickness of the air film will be constant over a circle whose center will be at O and will often concentric dark and bright rings. It should be pointed out that in order to observe the fringes, the microscope has to be focused on the surface of the film. Each ring will be the locus of all such points where thickness is set. तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है एक थिकनेस पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट को हम जो इंसिडेंट कराएंगे ना, ये भी नॉर्मल इंसिडेंट, इसका फिगर आपने देखा था पहले प्रैक्टिकल में, अभी भी मैं दिखा रही हूँ इसका फिगर, जो भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे ना, दैट लाइट विल बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द थिन फिल्म, एंड इसी फिल्म में से जो इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ मतलब ये जो रिफ्लेक्शन हम साइड में दिखा रहे हैं समझाने के लिए, और जब नॉर्मल मतलब ये जो लाइट है इंस्टेड ऑफ दिस इंक्लाइन, ये टेढ़ा और ना होगा, अगर ये स्ट्रेट सीधा अगर इंसिडेंट करेगा, देन ये क्या होगा, एयर फिल्म का ऊपर एक ही थिकनेस का ऊपर से चला गया, फिर अंदर आया, उसी के ही नीचे से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ओके। तभी एक थिकनेस पे हमें एक फ्रिंज मिलेगा, ओके। एंड ये जो एक थिकनेस में जो एयर फिल्म है उनका लोकस क्या होता है, उनका लोकस जो बनेगा एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस पे, वो सर्कुलर, सो जो इंटरफेरेंस होती है दैट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द होल सर्कल ऑफ द थिन फिल्म ऑफ ए कांस्टेंट थिकनेस, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सर्कुलर रिंग्स, ठीक है, ओके। सो लेट अस गो टू द, तो अभी सर्कुलर रिंग्स क्यों है, समझ में कुछ आया? मैंने कुछ बोला आपको समझ में आया? कल मैंने स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बोला था, अभी सर्कुलर फ्रिंजेस बोला, वहां पे बोला था लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंग टू ए कांस्टेंट थिकनेस, दैट इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे क्या है, सर्कल में है, एंड जो वेव शेड फिल्म में स्ट्रेट क्यों आ रहा था, क्योंकि उनका लोकस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में था, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस, ठीक है।
एंड न्यूटन रिंग में यू विल गेट सर्कुलर फ्रिंजेस। क्यों समझ में आया? दैट इज इट इज वन ऑफ द कॉमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर वाइवा एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। रिंग सर्कुलर क्यों होता है? कुछ समझ में आया बच्चे या नहीं आया? वाई आर गेटिंग सर्कुलर रिंग्स? बोलो, कुछ आया? पहले फिगर देखो, चलो शायद अभी दोबारा बता दो मैम एक बार। हाँ, ये फिगर देखो, ठीक है। तो दिस इज द फिगर ऑफ योर न्यूटन रिंग। ये हमने पहले लैब में भी जब कर रहे थे देखा था। अब ये देखो, ये क्या है? दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे एक हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया है एंड इस लेंस का काम क्या है? इट विल वर्क एज ए जो भी है ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट एंड लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस पैरेलल इंसिडेंस ऑफ लाइट यहाँ पे हमारी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ए ग्लास प्लेट इंक्लाइन 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट, ठीक है। तो लाइट कहाँ पे आएगा? सपोज लेट अस कंसीडर दिस अपर रे, ये ऊपर से गया, कहाँ पे टच किया? ग्लास प्लेट को यहाँ पे टच किया, देन ये इसका काम क्या है? लाइट को ये सीधा नॉर्मल इंसिडेंट कराएगा, यहाँ पे गया, उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आ गया, एयर फिल्म के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। एंड सेकंड कहाँ पे गया? यहाँ पे गया सेकंड। फिर देखो ये सारी जो लाइट है ये एक है, यहाँ पे दो एरो दिख रहा है सभी में। देखो यहाँ पे एक ही लाइन पे दो एरो क्या इंडिकेट करता है? सो लाइट यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ वो इस एरो का मतलब ये नीचे की तरफ गया, एंड ये जो नीचे वाला एरो का मतलब क्या है? यहीं से रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ प्रोपागेट किया, ठीक है। ये एरो मतलब दिस इज द, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन वापस आ रहे इंटरफेरेंस होने के लिए, तो ये गया एंड ये फ्रिंजेस यहीं पे बनती है और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करेंगे एंड द फ्रिंज पैटर्न कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एंड एक्चुअली हम सोडियम लाइट, येलो लाइट यूज करते हैं तो हमारी पैटर्न जो है ऐसे कलर का एक्चुअली नजर आता है, ठीक है, येलो एंड ब्लैक लाइट। ओके, ये चीज में अभी देखो यहाँ पे लाइट क्या है? लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दिस सरफेस। नॉर्मल ऑन द सरफेस मतलब सीधा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट हुआ मतलब कहाँ पे गया? इस एयर फिल्म जो यहाँ पे है उसका ऊपर से इंसिडेंट हुआ, फिर उसी से वापस आ गया, फिर नीचे की तरफ उसी डिस्टेंस पे गया, फिर वहीं से वापस आ गया, ठीक है। तो जो भी है पार्ट डिफरेंस का केस यहाँ पे होता है, ये याद रख लोगे पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे इस चीज का, जो जैसे हमने नॉर्मल किया था वो ऐसे आएगा 2 म्यू टी कॉस आर। एंड यहाँ पे बोलो लैम्डा बाय 2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? चलो इस फिगर देख के मुझे बताओ वेदर विल गेट ए फैक्टर ऑफ लैम्डा बाय 2 और नॉट। बोलो 2 म्यू टी कॉस आर लैम्डा बाय 2 आएगा नहीं आएगा? आएगा, आ रहा है इसमें भी लैम्डा बाय 2 आ रहा है। क्यों आएगा एंड कहाँ पे आएगा? बताओ, अभी तो बताओ, बोलो एनीवन। फिगर देखो कहां पे रे इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हो रहा है? कहां से हो रहा है? और ये जो भी ज्यादा हीरो बन रहे हो ना, थोड़ा हीरोगिरी अपना बंद कर दो, ओके। हाँ ये बोलो ये कहां से हो रहा है? ये देखो ये जो यहाँ पे अपर सरफेस में ये ग्लास से आया, सो दिस इज ए डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन, ओके, दिस इज ए डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन। एंड यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पे गया? यहाँ पे गया ये नीचे की तरफ। तो ये क्या है? एयर से गया ग्लास की तरफ एंड यहाँ पे ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सो दिस इज ए रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन। एक ही जगह पे आपका हो रहा है रेयर टू डेंस, यहाँ पे रेयर से गया डेंस में रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये दिस रे इज कमिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एक ही रे आपका रेयर से डेंस रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उस वहां पे हमारी लैम्डा बाय 2 का फैक्टर वी आर गेटिंग, ठीक है, दैट्स वी आर गेटिंग ए फैक्टर ऑफ लैम्डा बाय 2 फ्रॉम फॉर दिस थिंग। समझ में आया या नहीं आया बच्चे? बोलो यस मैम। आ गया लैम्डा बाय 2 का फैक्टर क्यों आएगा? ये भी एक वाइवा में आपको पूछा जा सकता है। जनरल थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आता, व्हाई यू आर गेटिंग लैम्डा बाय 2 फॉर आज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इन जनरल आ सकता है, पर न्यूटन रिंग में वाइवा का दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये लैम्डा बाय 2 का फैक्टर यहाँ पे आ गया। अभी देखो नाउ यू कैन सी दिस फिगर। इन दिस फिगर क्या दिखा रहा है? दिस इज योर लाइट इंसिडेंट नॉर्मली। अभी बताओ ये है सेंटर, ये स्फेरिकल सरफेस है, प्लानो कन्वेक्स लेंस मतलब स्फेरिकल सरफेस। ये वाला पॉइंट क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट में थिकनेस कितना है आपका? 0 थिकनेस। एंड यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस पे थिकनेस कितना है? T1, यहाँ पे थिकनेस T1। सो ये जो एक पर्टिकुलर रिंग हमें बनती है,
यहाँ पे जो मिलता है डार्क दैट इज फॉर सेंटर एंड at a particular ring, suppose at a constant distance from T1 along all the sides. So बताओ ये T1 thickness का जो locus है वो कैसे बनेगा? The locus of the air film having thickness T1 is in the shape of a circle. क्योंकि यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, एक इस O से constant distance from at a particular distance पे air film का thickness क्या होगा? T1. एंड एयर फिल्म बनती कैसी है? इंटरफेरेंस पैटर्न जो है यहाँ पे बनती कैसी है? बिकॉज द लाइट इंसिडेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म एंड फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ए पर्टिकुलर फ्रिंज. ठीक है, सो क्योंकि इन ये जो एयर फिल्म का लोकस जैसे होगा ये फ्रिंज का लोकस भी ऐसा ही होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ए सर्कुलर रिंग. आप सबको पता है, आप जैसे केक आप खाते हो, केक एक जनरल केक आप बहुत ज्यादा स्फेरिकल सर्कुलर शेप में होता है. अगर इस केक का एक स्लाइस काटो, जो आप पहले काटते हो, उसका शेप क्या होगा? जो केक का एक जो शेप होता है छोटा सा, जो आप ऐसे करके ट्रायंगुलर करके निकालते हो, उसका शेप क्या है? दैट विल बी इन द शेप ऑफ ए वेस्टेड फिल्म. अगर इसी का हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, देन दैट विल बी लुकिंग एज ए वेस्टेड फिल्म. तो बड़ा सा सर्कल का एक स्मॉल पार्ट, उसका ऊपर वाला हिस्सा को हम क्या मानते हैं? स्ट्रेट लाइन ही मानते हैं. ओके, उसको हम क्या मानते हैं? जो एक आप केक जो काटते हो, केक का जो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जितना थिन स्लाइस करके लेता है, वो थिन स्लाइस का एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसी के ऊपर जितने सारे जो पॉइंट आएंगे, उनका जो लोकस क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. उसको हम सर्कुलर तो नहीं लेंगे, क्योंकि दैट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग सर्कल, जिसको हम जनरली मान लेते हैं स्ट्रेट. तो वेस्टेड फिल्म में वही होता है, जो लोकस जो होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो एयर फिल्म एनक्लोज होता है, उनका जो लोकस होता है दैट इज इन द शेप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सर्कुलर, दैट यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस. एंड इन न्यूटन्स रिंग लोकस जो यहाँ पे सर्कल होता है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सर्कुलर फ्रिंजेस. ठीक है, locus of all the points corresponding to a particular thickness of the air film from a constant distance from the center is in the shape of a circle. That's why you are getting circular rings. Okay, चलो समझ में आया सर्कुलर रिंग्स क्यों होता है? आया बच्चे? मैम. हाँ, यस मैम. एक बार इसको पढ़ लोगे तो Yes, ma'am. आ जाएगा. ठीक है, इसको याद करना बच्चे, ये एक ही बार पढ़ने की चीज है, बहुत इजी टॉपिक है, खाली थोड़ा सा ही समझना है. चलो अभी हम इसमें लिखेंगे कि पार्ट डिफरेंस. नोट्स बनाओ, ये फिगर बनाओ, नोट्स बनाओ अपना. ठीक है, अभी तक तो हम समझ रहे थे, अभी इस फिगर के साथ नोट्स बनाओ. यहीं से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो गया. इससे आगे ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो नोट डाउन एवरीथिंग. ओके, जो मैं बोल रही हूँ इसको नोट करो. मैं पूरा स्लोली पढ़ा रही हूँ, आप लिखते जाओ इससे देख के. जो चीज मुझे लगेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं उसको ब्लैक बोर्ड में कोशिश करूंगी समझाने की, अगर आपको दिखेगा तो. चलो, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, आ जाएगा समझ में. तो पार्ट डिफरेंस लिखो. पार्ट डिफरेंस इन केस न्यूटन रिंग में कितना आता है? 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2. अभी इसी से ही ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन, डार्क फ्रिंज का कंडीशन दोनों लिख सकते हैं. ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2. सो 2 म्यू टी cos r का वैल्यू कितना हो जाएगी? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. डार्क फ्रिंज में कितना होगा? पार्ट डिफरेंस, दिस पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. इधर से लैम्डा बाई 2, इधर से लैम्डा बाई 2 कैंसिल. सो 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू दिस वैल्यू. तो देखो, दिस इज द कंडीशन फॉर योर डार्क फ्रिंज. एंड डार्क फ्रिंज के कंडीशन ही जनरल हम कंसीडर करके डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज लिखो. This is the condition. So 2 mu t cos r equals to n lambda. This is the condition for dark fringe. Okay, लिखो बच्चे, यहाँ तक पहले लिखो, उसके बाद ये 2 लाइन जो लिखा है उसको भी लिखोगे. वह बच्चे लिख रहे हो? बोलो. लिखने के बाद आगे चलेंगे. So Yes. हाँ, अभी लिखो 2 mu t cos r equals to n lambda. So for normal incidence क्या होगा? यहाँ पे लिखो, स्पेसिफाई करके इसको हम और शॉर्ट बना देंगे. पार्ट डिफरेंस नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए r इक्वल्स 0, तो cos r कितना हो जाएगी? 1. एंड यहाँ पे जो एयर फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है? यहाँ पे जो थिन फिल्म है दैट इज ऑफ एयर. फॉर एयर फिल्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है? 1. सो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2t प्लस लैम्डा बाई 2. सो डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज विल बी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा. ठीक है,
फॉर ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी 2t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। फॉर डार्क फ्रिंज कितना आ जाएगी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ तक समझे बच्चे? उसका वैल्यू पुट करो एंड फटाफट डार्क में उसका वैल्यू पुट कर दो। इन दिस केस कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज। n इज द नंबर ऑफ फ्रिंज। यहाँ पे जो पैटर्न है कोई एक पर्टिकुलर नंबर के लिए सेंटर को हम 0 मानेंगे, उसके बाद दिस इज 1 2 सेंटर डार्क है दैट इज 0th ऑर्डर फ्रिंज। उसके बाद जो पहला आते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको फिर भी डाउट है तो बोलो। आ गया मैम समझ। आ गया? ओके चलो आगे चलते हैं। अभी ये देखो रिंग्स जो बनती है कैसे बनती है, जो आपको मैंने वहां पे साइड में दिखाया था, ये भी वही फिगर है, वही फिगर है। देखो सारे चीज सेम टू सेम फॉर्म है। देखो जहां पे यहाँ पे देखो जो, क्योंकि इसका जो रेडियस है कर्वेचर ज्यादा है, मतलब कर्व सरफेस जो है इसका हाइट कम है, तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट पे कॉन्टैक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे जो सेंटर है ना डार्क आता है एंड थोड़ा सा बड़ा सा सेंटर आता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जितना जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे क्या है थिकनेस आपका 0 है। थिकनेस 0 है तो मतलब थिकनेस 0 है मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई आर गेटिंग ए डार्क सेंटर। ये भी आता है डार्क सेंटर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्यों आता है। t इक्वल 0 यहाँ पे आपका पार्ट डिफरेंस कितना t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगी पार्ट डिफरेंस दैट इक्वल टू ओनली लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा बाई 2 आ जाएगी, मतलब दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स व्हाई कल जो कर रहे थे वही सेम चीज, सेंटर जो आपका यहाँ पे डार्क आता है। यहाँ पे एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट पार्ट डिफरेंस कितना होता है 2t प्लस लैम्डा बाई 2। So contact point पे thickness T of the air film equals to 0. So part difference delta equals to 2T का वैल्यू कितना होगा 2T equals to 0 तो प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। So this is the condition for destructive interference. That's why you are getting a dark center. ठीक है, चलो ये मैं कल पूछूंगी फिर से डार्क सेंटर क्यों आता है, सर्कुलर रिंग क्यों आता है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे डार्क आ गया, फिर एट दिस थिकनेस और एक रिंग मिला, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे एट दिस थिकनेस हमें क्या है एक रिंग मिला डार्क, खाली व्हाइट हम ब्राइट नहीं दिखा डार्क दिखा रहे। सो यहाँ पे आ गया सपोज दिस इज द फर्स्ट डार्क रिंग। तो इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा, मतलब फर्स्ट के लिए 2t इक्वल्स टू लैम्डा, सेकंड के लिए 2t इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 2t1 इक्वल्स यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, यहाँ पे t3 है। अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग डिफरेंट फ्रिंजेस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो डिपेंड करता है सोर्स इज कांस्टेंट, मतलब लैम्डा कांस्टेंट, फिल्म कांस्टेंट, एवरीथिंग कांस्टेंट, तो खाली थिकनेस वेरी कर रहा है। सो ओनली वी आर गेटिंग पार्ट डिफरेंस चेंज किसके ऊपर हो रहा है, पार्ट डिफरेंस चेंज ओनली थिकनेस ऑफ द फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस टी इज वेरिंग तो पार्ट डिफरेंस इज वेरिंग, पार्ट डिफरेंस वेरी करने से ही हमें डिफरेंट फ्रिंजेस मिलेगी। ओके ना, अभी यहाँ पे करेंगे इधर से इसी फिगर से अभी निकालेंगे डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। ये लिखो, ये डेरिवेशन आता है सीधा, ये डेरिवेशन आएगा, ये लॉन्ग डेरिवेशन है। एंड हर्षित यू विल सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल फोटोज। शायद कल एक फोटो कोई एक ये हो गया क्या, आज मेरे सारे फोटो भेज दो स्क्रीनशॉट का, कितने बच्चे 48 बच्चे 47 बच्चे हैं, सबका नाम के साथ भेजो। एंड अनदर थिंग आप सब अभी नोट्स बनाओ एंड जब ये खत्म होगा फटाफट ज्वाइन कर लेना, तो ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसका एप्लीकेशन बाद में नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, लिखो ये हेडिंग दो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, एंड इसके साथ ये वाला फिगर का खाली ये वाला हिस्सा ही बना सकते हो, इधर साइड का जो ये बनाया, ये वाला रिफ्लेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये बनाओ नहीं ये वाला बनाओ, ये फिगर ड्रॉ करो एंड डायमीटर ऑफ डार्क रिंग लिखो उसके डेरिवेशन के साथ। ये वाला फिगर बना लो बच्चे कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चे फिगर बन गया, फिगर बन गया। थिन फिल्म कैसे बनती है सबको समझ में आ गया? यस मैम। हाँ
चलिए आगे, डायमीटर फिर निकाले मैथमेटिकल, ये फिगर बना दो। ये जो मेन इंपोर्टेंट है ये आर है, ये टी है, आर माइनस टी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ये थिकनेस है टी, ठीक है, मार्क कर लो। ये जो थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट दिस पॉइंट इज टी, एंड आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आर है तो ये पूरा भी आर होगा, दिस होल लेंथ विल बी आर। तो आर माइनस टी क्या है, अगर ये थिकनेस टी है देन यहाँ पे ये थिकनेस भी टी होगा। ये जो छोटा सा या इस पॉइंट से यहाँ पे इसका थिकनेस भी टी होगा, एंड दिस होल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू आर। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसको नाम दे दो ओ ए बी, कुछ नाम दे दो, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट को नाम दे दो ओ, इस पॉइंट को दे दो ए, इस पॉइंट को दे दो बी, ओके। दिस इज, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट को नाम दे दो ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट ओ हो गया, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, ये वाला पॉइंट को सी, इसको ओ, ये। तो ये आपका हो गया ए, दिस इज ए, ये बी, दिस इज सी, कॉन्टैक्ट पॉइंट इज योर ओ। तो आपका ये क्या है, ओ सी जो है, दिस इज योर ओ सी, दैट इज योर टी, एंड दिस पॉइंट इज ओ ए इज योर आर। सो आपका ए एंड सी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर माइनस टी, एंड दिस इज योर, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस तो आर है, एंड ये क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस लिया है इसने स्मॉल आर। तो ये क्या है, स्मॉल आर क्या है, एट दिस थिकनेस टी, at this thickness T, let us consider we are getting nth dark ring. At this thickness T, let us consider we are getting nth dark ring. तो यहाँ पे जो रिंग बनेगा at this thickness, उसी का जो रेडियस से that is your r, उसको अभी देखेंगे। ये फिगर बना, फिर मैं इसको फिर से समझाती हूँ। लिखो पहले, r is the radius of curvature of the lens and Tn is the thickness of the air film at n। फिगर थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको मैं कोशिश करती हूँ ब्लैक बोर्ड में बनाने की। थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट दिस पॉइंट, मतलब हमने शायद बी नाम दिया है उसको, मैंने आपको बोला था that नाम दे दो इसको बी। ओके, ऐसे फिगर बच्चे दिख रहा है, बच्चे मैंने बनाया ब्लैक बोर्ड में, फिगर दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। यस मैम। हाँ दिख रहा है ना, तो ऐसे नाम दे दो। तो ये जो यस मैम। इस पॉइंट में कोई डी नाम दे दो। तो ये थिकनेस कितना है, ये थिकनेस टी है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक पैरेलल लाइन खींच ले, देन ये पॉइंट को अगर हम ई नाम दे देते हैं, देन ये कितना हो गया, ये टी है, एंड हमने आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। तो ये हमारी क्या है, दिस इज योर आर, ये है ये डिस्टेंस आर, एंड दिस दैट इज ए ओ इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आर, AO इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू R। तो हमारी ये जो पॉइंट को सी दो, इवन दो इसको सी, ओके, दिस पॉइंट इज सी। तो आपका AC कितना हो जाएगी, AC विल बी इक्वल्स टू R माइनस T, ओके। अभी इन दिस ट्रायंगल ABC कंसीडर करो, इन दिस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी बोलो AB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, ओके। AB क्या है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। AC क्या है, ये थिकनेस अगर T है, देन ये थिकनेस भी T, एंड दिस होल डिस्टेंस कितना है आपका, कैपिटल R, यहाँ से T माइनस कर लिया, तो इसका वैल्यू कितना है, R माइनस T, ओके।
सो दैट r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे r माइनस t का होल स्क्वायर। एंड ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो इसने लिखा है, जो फिगर में लिखा है r m लिखा है या r लिखा है, हम r m में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, एट दिस कांस्टेंट यहाँ पे थिकनेस भी t है एंड यहाँ पे और किसी पॉइंट पे आ सकता है जहाँ पे थिकनेस t होगा सर्कुलर शेप में। एंड यहाँ पे जो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न एज ए रिंग बनेगी, ये एक डार्क रिंग बनेगी, इसका जो रेडियस है दैट इज योर r। So this is r and this is also your r, समझे? So यहाँ पे rn is the radius, यहाँ पे एक constant distance पे constant distance from the contact point at a constant thickness we are getting a circular ring, okay? And this circular ring का जो radius है that is your rn। So this is r minus t square and this is your, इसको हमने क्या लिखा था bc square, that is bc square कितना होगा, bc square इस साइड दिख रहा है बच्चे, जो में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस इज, बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लेना, इसको कंप्लीट करेंगे, प्लस आर एन स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस टी का स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2rt प्लस आर एन स्क्वायर, ओके? इसके नीचे नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि दिखेगा नहीं इतना ही। अभी दोनों साइड से क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट एंड यहाँ पे टी क्या है, टी इज लिखो थिकनेस ऑफ द फिल्म दैट इज वेरी स्मॉल। सो टी अगर बहुत छोटा है देन चलो दिखाओ। हाँ बच्चे, सारे बच्चे लिख रहे हो अपना नोट्स में, ये डेरिवेशन लिखो, ओके? हम बच्चे अभी करो इस डेरिवेशन, फिर से स्टार्टिंग से देख लो, अगर कहीं भी छूटा है तो इसको लिख लो अच्छे से। सो दिस इज योर r माइनस t एंड वी आर कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल ABC। तो ABC में AB कितना है, AB इक्वल्स टू r, दिस इज r माइनस t एंड दिस इज योर rn। अगर इसका हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे देन क्या आ जाएगी, दिस इज r स्क्वायर equals to r minus t square plus rn square. So this is ab square equals to ac square plus bc square, r square plus r minus t का whole square plus rn का square। एंड इसको अगर हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद दोनों साइड में r स्क्वायर कैंसल आउट, तो बच्चा t स्क्वायर माइनस 2rt प्लस rn स्क्वायर। एंड ये जो t है इसका थिकनेस इतना छोटा है, दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इसका जो स्क्वायर है दैट इज और भी उससे छोटा क्वांटिटी, सो इट इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू rn एंड r, सो दैट वी आर ड्रॉपिंग दिस थिंग।
So this is 2t r equals to r square. यहाँ तक डेरिवेशन कर लो, फिर आगे इसमें यूज होगा और कुछ चीज और भी कुछ कंडीशन इसमें आ जाएगी. ओके, यहाँ तक हो गया बच्चे. तो टी स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट करने के बाद कितना आया 2t r इक्वल टू r स्क्वायर. ये दिख रहा है बच्चे ब्लैक बोर्ड जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, दिख रहा है. तो इस कंडीशन को लिखो, इसमें फिर हम पुट करेंगे. तो हम हाँ बच्चे हो रहा है या नहीं हो रहा डेरिवेशन ध्यान तक कर लिया मात्र. तो 2t r इक्वल टू r स्क्वायर. और किसी का डाउट है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है दिखाई नहीं दिया नहीं हो पाया तो बोलो, क्योंकि बच्चे विदाउट ब्लैक बोर्ड तो इतना लॉन्ग डेरिवेशन करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है. फिर भी देखते हैं जितना हो रहा है. अभी देखो हमारे पार्ट डिफरेंस का कंडीशन फॉर Rn क्या है. Rn को क्या लिखा आपने, देखो Rn इज द, जहाँ पे Rn को इंट्रोड्यूस किया था उसमें लिखो Rn इज द nth ring, इट इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग. देखो Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग. इट इज रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग. ठीक है. डार्क रिंग का कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस हमने निकाला था. देखोगे हमने ऊपर अभी किया था, लिखो फॉर nth डार्क रिंग द कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू n लैम्डा. ये हमने पुट किया था. देखो मैंने बोला था इसको याद रखोगे आगे काम आएगा. 2t इक्वल्स टू n लैम्डा. उसको कोई इक्वेशन दे दो या फिर यहाँ पे रेफरेंस पे लिखो फॉर n डार्क रिंग. लिखो फॉर nth डार्क रिंग, for nth dark ring the condition for nth dark condition is for nth dark ring the condition for path difference is 2t equals to n lambda. and यहाँ पे क्या लिखा 2t r equals to rn square. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, rn square equals to n lambda r लिख सकते हैं. rn square equals to n lambda r. हाँ बच्चे लिख सकते हैं. दिस इज Yes. हाँ. अभी इसका डायमीटर क्या होगा, हमने यहाँ पे रेडियस लिख लिया. अगर हमें डायमीटर लिखना पड़ेगा इस रिंग का तो कितना हो जाएगी dn स्क्वायर. कैपिटल D लिखो, कैपिटल D लिखो. dn स्क्वायर कितना हो जाएगी, इसका डबल का स्क्वायर दैट इज 4n लंबा r होगा नहीं. dn कितना है 2rn. 2rn का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसे 2 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगी, दिस इज 4n लंबा r. ओके, so this is the diameter of nth dark ring. लिखो this is diameter of nth dark ring. ठीक है. dn square equals to diameter of nth dark ring. ठीक है, ध्यान दो. लिखा बच्चे, आगे कुछ चीज अब आपने Yes, ma'am. यस मैम. हाँ. अभी यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करो, dn स्क्वायर निकालो. 2 पुट करो, 3 4 4 वैल्यू पुट करके d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर d4 स्क्वायर निकालो. ठीक है. हाँ बच्चे, जिसको किसी को कोई डेरिवेशन में डिफिकल्टी है यू कैन आस्क मी. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सबको इंडिविजुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, तो आप मुझे बता दो और कोई डाउट है. ठीक है. क्योंकि कोई डेरिवेशन में डिफिकल्टी है देन हम उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं. अभी देखो d1 स्क्वायर कितना आएगा 4 लैम्डा r. d2 स्क्वायर कितना आएगा 8 लैम्डा r. 8 लैम्डा लैम्डा r दैट इक्वल्स टू 8 लैम्डा. नमक डाले क्या. अभी देखो, अभी सभी आपने निकाला. अभी देखो d2 माइनस d1 निकालो, d3 माइनस d1 निकालो, एंड दिस इज d4 माइनस d3 निकालो. तो d1 स्क्वायर आ गया. अभी इसका अंडर रूट करो. d1 कितना आया दैट इक्वल्स टू अंडर रूट 4 लैम्डा r. d2 कितना आएगा अंडर रूट 8 लैम्डा r. d3 कितना आएगा 4 3 12 दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 लैम्डा r.
d4 equals to under root of 16 lambda r आएगा। ये दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अब फिर से ठीक है, d1 d2 d3 d4 का आ जाएगा। इसको ब्लैक बोर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपने निकाल दिया। अभी एक चीज आप ऑब्जर्व करो, अपने आप ऑब्जर्व करो, आपका ये d2 माइनस d1 d3 माइनस d2 d4 माइनस d3 सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे आ रहा है मैम, पूरा कांस्टेंट आ रहा है, आ रहा है मैम। अभी चालू करके नहीं आ रहा। मिनट, एक मिनट। सुनो, अगर हम ऐसे ये चार को मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अब इनका नंबर n का नंबर जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते 5 6 10 12 20, क्यों आपने रिंग्स पैटर्न भी देखा है, बहुत सारे रिंग्स आ रहे हैं। तो आपने आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स, यहाँ पे सबसे पहले जो स्पेसिंग वो सबसे ज्यादा है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू उससे कम आएगा। ये होते होते जैसे n का नंबर जितना बढ़ता जाएगा, then the spacing between the rings is gradually decreasing. Spacing between the rings will gradually decreasing as the value of n is increasing. n का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा, तो ये चीज को हम क्या कहते हैं, ये एक फ्रिंज है, ये और एक फ्रिंज है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, जो हम बीटा निकालते हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता। बीटा that is a fringe distance between the two consecutive fringes is not remaining constant. ये वेरी करता है। तो वेरी कैसे करता है? जैसे n का नंबर बढ़ता जाएगा, n is gradually increasing, जो स्पेसिंग है ना वो फिर कम होते होते बिल्कुल आसपास, जितना दूर जाएंगे ना लगेगा ये सारे बिल्कुल आसपास बहुत ही कम डिस्टेंस में वी कैन ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो यही तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दैट इज in case of a Newton's ring experiment, show that spacing between the rings is gradually decreasing as the value number of rings is increasing. तो आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का फिगर बनाना है, न्यूटन रिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, एंड डेरिवेशन जो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस वाली फिगर से, यहाँ से लेके अभी तक जो डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2t इक्वल्स टू n लैम्डा, rn इक्वल्स टू अंडर रूट n लैम्डा, dn का वैल्यू भी इतना आ गया। इधर से आप d1 d2 d3 d4 निकाल सकते हो। सो फ्रिंज डिक्रीजेस with the order of fringe and the fringes get closer with the increase in the order, ठीक है। ओके बच्चे, हाँ यहाँ तक ये आपका आ रहा है। ये डेरिवेशन के बाद फिर यहाँ पे खाली ये dn के लिए लिख लिया, एंड यहाँ पे ये लिख लिया, दैट इज योर दिस थिंग, जो d1 d2 d3 d4। आप ये देखोगे d1 माइनस d2, सॉरी d1 माइनस d2 माइनस d1, d2 माइनस d1 इज मोर देन d3 माइनस d2, एंड दिस इज मोर देन दैट इज d4 माइनस d3। जैसे हम ग्रेजुअली और n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये जो डिफरेंस है दैट विल डिक्रीज, धीरे धीरे वो लगेंगे आसपास सारे रिंग्स जो बिल्कुल क्लोजली आसपास में चिपक गए, ऐसे लगेगा। दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स इज ग्रेजुअल डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो बच्चे, समझ में आया? टाइम भी आपका हो गया, समझ में आया? हाँ, इसको कर लेना, अच्छे समझ लेना अच्छे से, कोई डाउट है तो फिर पूछना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी भी है, तो एक बार इसको पढ़ के अपना नोट्स बना के रख लो, फिर एग्जाम से पहले ही पढ़ना, बाकी जरूरत ही नहीं पढ़ने की, ओके। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग, क्योंकि आपका 54 हो गया। विल टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर नेक्स्ट आपका टीचर आ जाएंगे। मैम आप ये पीपीटी शेयर कर दो। हाँ हाँ, ये कर लो, ठीक है, आज ही कर दूंगी, ठीक है, आज कर रही हूँ, क्योंकि बीच में एक्चुअली एक दो चीज जो छूट गया था, कल मैं देख रही थी एक्सपेरिमेंट सोर्स का नहीं लिखा था, बाकी सब तो तैयार है। अभी इंटरफेस ऑलमोस्ट खत्म है, खाली इसमें 2 एप्लीकेशन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। मैं आपको आज दे दूंगी, ठीक है, आज मैं दे दूंगी, अगर होगा तो मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, आज ही कर लूंगी, ठीक है, आज थोड़ा टाइम है मेरा। चलो बच्चे, एंड आई एम स्टॉपिंग इट, आई एम एंडिंग द मीटिंग, और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी।